Hello everyone, welcome back. Today I am here with the second part of rice. In last lecture we have discussed about its morphology, botanical description and morphological details. Today we will discuss about its cultivation practices and the utilization of rice. So let's start. Firstly, we will discuss about the area under cultivation. As we know that rice is an important crop of the world, बहुत ही एक important crop है world की, and is grown in an approximate area of 164 million hectares in more than 80 countries of worldwide. So this is the cultivation area, that is approximately 164 million hectares, और 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड इसको ग्रो किया जाता है. It is grown mostly in the tropic and warm temperate regions of the Asia. जो एशिया के ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वार्म टेम्परेट रीजन्स हैं, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है मोस्टली. एंड इट इज़ आल्सो ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. इन कंट्रीज़ में भी इसे ग्रो किया जाता है. एंड इट कैन बी ग्रोन अप टू एन एल्टीट्यूड दैट इज़ मोर देन 3000 मीटर. सो 3000 मीटर्स की ज़्यादा हाइट तक इसे ग्रो किया जा सकता है राइस को. एंड इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द कंट्री. और इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में राइस को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इन इंडिया as we know it is cultivated throughout the country, and area under cultivation is about 44.14 million hectare. This is data from Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare 2015 and 16. So उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें मिला है, that shows that the area under rice cultivation in India is about 44.14 million hectares. And UP has an area of 5.98 million hectares under rice cultivation. And the rice is the main crop of states like Punjab, UP, Haryana, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Maharashtra, and Gujarat. And the climate of northern plains of India with mild winters and hot dry summer is highly favorable for the rice cultivation. Next comes rice growing regions in India. India can be divided into 5 following regions on the basis of growing season and rainfall. रेनफॉल और सीजन्स के बेसिस पे हम इंडिया को 5 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे राइस को कल्टीवेट किया जाता है. फर्स्ट जो रीजन है दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 7 स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है कलेक्टिवली 7 सिस्टर स्टेट्स. इट इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय. सो ये जो 7 स्टेट्स हैं ये बनाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, और यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती है ऑन द बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर को बंगाली में कहा जाता है जमुना, और तिब्बतन में इसे कहा जाता है सांगपो, एंड इन चाइनीज़ इट इज़ नोन एज यारलुंग ज़ेंगबो जियांग, एंड इज़ द मेजर रिवर ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. एक बहुत ही मेन रिवर है ये साउथ एशिया की. एंड ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है इट इज़ इट्स ओरिजिन इज़ इन चाइना फ्रॉम द चेमायोंगडोंग ग्लेशियर. तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है. दिस इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मपुत्र. Next region is the eastern region. Eastern region comprises of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Eastern Uttar Pradesh and West Bengal. So ये जो states हैं ये बनाती हैं हमारा eastern region. This is the eastern region. So यहाँ पे जो भी states हैं they comes under this eastern region. Rice is grown in the basins of Ganga and Mahanadi rivers in this region. जो राइस की खेती की जाती है वो होती है बेसिन. Next comes northern region. This region comprises of Haryana, Punjab, Western Uttar Pradesh. जो ये वाला region है हमारे पास it comes under this northern region, North India.
इसमें इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर. The next comes Western region. The Western region, it comprises of the Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. So जो Western region है ये इसमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान. This is the map showing the Western region of India. Rice is mostly grown under rain-fed conditions in this region from June to August to October, December. So जो जब rain-fed conditions होती हैं तभी यहाँ पे राइस की खेती की जाती है. Next comes the last one, that is the southern region. So the region comprises of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So this is the southern region of India. So ये जो states हैं ये southern region में आती है India का. And rice is mainly grown in the deltaic tracts of Godavari, Krishna, Kaveri rivers under irrigated conditions. So this is all about the rice cultivating regions in India, and we have divided these regions into 5. Next comes climate requirement. So rice is considered to be an aquatic or semi-aquatic plant because of its heavy water requirement. राइस को हम एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक प्लांट मानते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी हाई. बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए. वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइस. वन इज़ अपलैंड राइस. अपलैंड राइस कैन बी ग्रोन इन एरियाज विद रिलेटिवली लेसर रेनफॉल. जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे हम इस तरह के राइस को ग्रो कर सकते हैं. दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. अराउंड 100 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होता है एनुअली, दैट इज़ वेरी वेरी लो रेनफॉल. तो उसे हम अपलैंड राइस कहते हैं. जहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत कम होती है वहाँ पे राइस ग्रो करते हैं. दैट राइस इज़ अपलैंड राइस. नेक्स्ट इज़ लोलैंड राइस. Lowland rice plants are kept under submerged conditions throughout the growing season. तो इन्हें पानी में ही रखा जाता है throughout the growing seasons. This is a photograph which shows the submerged or lowland rice. It requires temperature ranging from 20 to 25 degrees Celsius. और इसके लिए जो ideal temperature है growth के लिए that is 20 to 25 degrees Celsius. Next comes cropping seasons. So we divide this rice cultivation into different cropping season. Different जो seasons है उसमें rice की different varieties को grow किया जाता है. So this table shows the cropping seasons. First column is crop season. Second, the Indian names used for that season. Third is the sowing time, and fourth one shows the harvesting time. So firstly we have autumn crop. Autumn crop को इंडिया में कहा जाता है ओज इन वेस्ट बंगाल, बेली, कर, अबू इन असम एंड भाड़ी. सो ये कुछ नाम यूज़ किए जाते हैं इन ऑटम सीज़न के लिए जब राइस को ग्रो किया जाता है. इसमें जो सोइंग टाइम है दैट इज़ मई टू जून और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है सितंबर टू अक्टूबर. नेक्स्ट कम्स विंटर क्रॉप. विंटर क्रॉप को और कहा जाता है अमान, हैं और कार्तिका, और इसका जो सोइंग टाइम है दैट इज़ फ्रॉम जून टू जुलाई और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है नवंबर टू दिसंबर. नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग और समर क्रॉप. ये जो स्प्रिंग और समर क्रॉप है इन इंडिया जो इंडियन नेम इसके लिए यूज़ होता है दैट इज़ बोरो और दलुआ, और जो सोइंग टाइम है इसके लिए दैट इज़ नवंबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज़ मार्च टू अप्रैल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉपिंग सीजन रिगार्डिंग द कल्टिवेशन ऑफ राइस. Next comes soil requirement. So heavy soils such as we have clay or clay loam soil with very high water holding capacity are the best suitable soil for the rice cultivation. The best soil है that is the heavy soil which include clay or clay loamy soil, और इसकी जो water holding capacity है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ये soil best है rice की cultivation के लिए. And rice can also be grown on other soil types such as we have alluvial soil, red, black and marshy soil. इसमें भी राइस को ग्रो किया जा सकता है. और जो pH की रेंज है राइस की ग्रोथ के लिए दैट इज़ 4 to 8 विच इज़ बेस्ट सुटेड फॉर द वाइग्रस ग्रोथ ऑफ राइस. सो ये जो रेंज है pH की 4 to 8 इट इज़ बेस्ट फॉर द वाइग्रस ग्रोथ ऑफ राइस. Next comes systems of paddy cultivation. So in India we follow mainly 3 main systems of paddy cultivation. First one is dry cultivation. So the land is plowed many times, that is 2 to 4 times to obtain a desired tilth. अच्छी तरह से सॉइल को में हल जोता जाता है with the help of tiller
और लैंड को रेडी किया जाता है, सॉइल को रेडी किया जाता है फॉर द राइस सीड सोइंग. वी यूज़ दीज टिलर्स इन प्लेन एरियाज या और हम स्मॉल टिलर्स को यूज़ करते हैं टू obtain द डिज़ायर्ड टिल्थ. Then we add organic manure in the plowed field to add some nutrients, जिसमें हम वर्मिंग कंपोस्ट से जो तैयार की जाती है खाद उसको डाल सकते हैं, या फिर जो कॉमन काउ डंग है उसको यूज़ किया जाता है. द सीड्स आर सोन आइदर थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसमें हम सीधा ही फेंकते हैं सीड्स को फील्ड्स में तैयार करके, और बाय डिबिंग मेथड बाय मेकिंग स्मॉल होल्स और इन द सॉइल उसमें सीड्स को सो करेंगे, या फिर ड्रिलिंग मेथड. फॉर दिस वी यूज़ स्पेशल मशीन्स. ये छोटी सी इसमें कैनाल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें सीड्स को इंसर्ट करता है. ड्यूरिंग प्री मानसून शावर्स, जो मानसून आने से पहले की शावर्स होती हैं उसके टाइम हम इसे बीजते हैं इन द ड्राई सॉइल और इन एंटिसिपेशन ऑफ द मानसून, या मानसून कब आएगा उसके हिसाब से इसे फील्ड में सो किया जाता है. नेक्स्ट कम सेमी ड्राई कल्टिवेशन. इसका जो इनिशियल प्रोसेस है दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द ड्राई कल्टिवेशन. जैसे ड्राई कल्टिवेशन हमने पढ़ा कैसे लैंड को रेडी किया जाता है, सो इट इज़ सिमिलर इन सेमी ड्राई कल्टिवेशन ऑल्सो. देन वाटर इज़ इम्पाउंडेड इन द फील्ड्स ड्यूरिंग मानसून. जब मानसून आता है उस टाइम पे फील्ड्स को ऐसे रेडी किया जाता है पानी वहाँ पे कलेक्ट हो जाए. द फील्ड इज़ प्लोड विद अ नैरो वुडन प्लो. एक जो नैरो वुडन प्लो होता है उसकी हेल्प से फील्ड्स को प्लो किया जाता है व्हेन द क्रॉप इज़ 5 to 6 वीक ओल्ड. जब क्रॉप होती है 5 or 6 वीक ओल्ड. दिस हेल्प्स इन थिनिंग, वीडिंग एंड इंटरकल्चरिंग ऑफ क्रॉप. इससे हम थिनिंग करते हैं, जो सीडलिंग्स बहुत नज़दीक रो करती हैं वो अप्रूट हो जाती हैं, और जो वीड्स हैं उनको अप्रूट किया जाता है. देन इट आल्सो हेल्प्स इन इंटरकल्चरिंग द क्रॉप. देन जो गैप्स बचते हैं बीच में आफ्टर थिनिंग, दीज गैप्स आर मैनुअली फिल्ड विद थिन्ड आउट सीडलिंग्स. तो जो गैप ज़्यादा बन जाए तो जो सीड्स अप्रूट हुए हैं उनको हम मैनुअली वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं. सो जो गैप्स हैं उनको मैनुअली फिल किया जाता है. दिस इज़ द semi dry method of rice cultivation. Next comes wet cultivation. It is followed in the area where water is in plenty. ये उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है या वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. सो वाटर फील्ड पैडी फील्ड्स आर प्लॉट 2 to 3 times. इसमें जो पानी से भरे हुए खेत हैं उन्हें 2 से 3 बार हल से जोता जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लो, ट्रैक्टर और पावर टिलर. इन मशीन्स को भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड आर फील्ड्स आर रेडी. और इसको हम कॉन्टीन्यूसली नहीं करते हैं, दिस शुड बी डन इन इंटरवल्स. इसको हम गैप्स में करते हैं. इन दिस सिस्टम जो मोस्ट ऑफ द टाइम राइस इज़ ट्रांसप्लांटेड. इस सिस्टम में जो राइस है वो ट्रांसप्लांट किया था, मीन्स नर्सरी से निकाल के उसको मैनुअली या फिर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ट्रांसप्लांटिंग मशीन इसे जो रेडी फील्ड्स हैं वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था विद द सीडलिंग रेज्ड इन द नर्सरीज. जो हम रेज करते हैं नर्सरी में सीडलिंग्स, वहाँ से इनको अप्रूट करके ट्रांसप्लांट करते हैं इन द फील्ड्स विच आर रेडी फॉर राइस कल्टिवेशन. इसके लिए हम इस मशीन को, ट्रांसप्लांटिंग मशीन को भी यूज़ करते हैं. इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी हैव दिस ट्रांसप्लांटिंग मशीन जो हेल्प करती है इस काम को जल्दी करने में. हाउएवर जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, स्प्राउटेड सीड्स आर द जर्मिनेटिंग सीड्स. ये जो सीड्स हैं इन सीड्स को भी हम डायरेक्टली सो कर सकते हैं इन द पडल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड. इनको हम डायरेक्टली सो कर सकते हैं जो रेडी फील्ड्स हैं हमारी विद द हेल्प ऑफ ड्रम सीडर मशीन. एक मशीन भी होती है इसमें ड्रम सीडर मशीन, उसकी हेल्प से या फिर मैनुअली इसको सो किया जाता है. सो दिस इज नेक्स्ट कम्स नर्सरी प्रिपरेशन एंड रेजिंग ऑफ seedlings. Seedling required for transplantation in wet system of paddy cultivation are raised in temporary nurseries or seed beds. Firstly, we have to choose healthy and viable seeds and are selected from reliable source. हमें अच्छे seed select करने हैं from a reliable source. Then the seeds are treated with some fungicides and bactericides to get rid of plant pathogens. फिर हम सीड्स को ट्रीट करते हैं विद सम फंजीसाइड्स और बैक्टीरियासाइड्स टू गेट रिड ऑफ दिस पैथोजन, ताकि जो क्रॉप है उसको कोई हार्म ना हो. फॉर दिस वी यूज सम फंजीसाइड्स लाइक एग्रोसैन.
इट्स अ ब्रांड नेम एग्रोसैन, और इसका जो केमिकल नेम दैट इज मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक फंजीसाइड। और ये जो फंजीसाइड्स हैं ये हम यूज़ करते हैं एट द रेट 3 ग्राम्स पर के जी ऑफ सीड। सो 1 kg सीड्स के लिए 3 ग्राम फंजीसाइड को यूज़ करेंगे टू ट्रीट दिस सीड्स. In addition to this, we use certain other fungicides, like we have famous brand name as Bevestin, Vanguard, etc. Bevestin को यूज़ किया जाता है, इसका भी जो रेशो रहता है that is 3 ग्राम per kg of seeds. And we have other fungicide that is Thiram. इसका that is a 75 to 85 wettable powder फंजीसाइड है ये, और इसको भी हम इसी रेशो में यूज़ करते हैं 3 ग्राम पर के जी ऑफ द सीड्स विच आर suitable for this purpose. So these are the best used fungicides to control the fungal borne diseases in rice. Next we have biological control agents, like we have Trichoderma viride. That can be also be used. So basically Trichoderma viride एक फंगस है और एक फंजीसाइड बायोफंजीसाइड की तरह यूज़ किया जाता है. मीन्स ये दूसरे फंगस को किल करता है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है. सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट फॉर सप्रेशन ऑफ वेरियस डिजीजेज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजेंस. सो ये भी फंगल जो पैथोजेंस हैं उनको कंट्रोल करने में बायोलॉजिकल एजेंट है. दिस इज ऑल्सो फंगल कल्चर है, ये फंजाई है जो कि ग्रोथ को रोकती है और फंगस की, और उन्हें किल करती है. सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल we can say biocontrol agent for soil borne disease. Next we have certain bactericides जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, like we have streptomycin. इसके जो और ब्रांड नेम्स है एग्रीमाइसिन हो गया. सो जो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं दे आर यूज्ड टू गेट रीड ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस. फॉर एग्जांपल वी कैन यूज इट एज 1 ग्राम पर 2.5 लीटर ऑफ वाटर. इसको हम इस रेशो में बना सकते हैं and can treat the rice seeds. Then the treated seedling seeds are dried under shed. जो sheds होते हैं उनके अंदर इसे ड्राई किया जाता है before sowing. Then we can use 40 to 60 kg of seeds in the nursery for the transplanting in each hectare of land. अगर हमने 1 हेक्टेयर में सीड्स को ग्रो करना है, सो 40 to 60 kg जो सीड्स हैं वो हमें सो करने पड़ेंगे नर्सरीज में to transplant this in 1 hectare of land. और जो नर्सरीज होती है that can be further of 3 types. First comes dry nursery. For its preparation, land with clay or clay loam soil is converted into fine tilth through repeated plowings, followed by planking. Planking is a method in which we use the plank of wood or iron to level the soil, जिससे हम मिट्टी को लेवल करते हैं ताकि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल ना हो. फॉर इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज दिस प्रोसेस. देन वी ऐड सम ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड सम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट्स, म्यूरिएट्स ऑफ पोटैश विच आर एडेड टू द वेल प्रिपेयर्ड सॉइल. जो सॉइल अभी तक हमने प्रिपेयर की उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, वो ऐड किए जाते हैं. And seed beds of 1.2 meter into 67.5 meters into 0.15 meters are prepared. So these are the dimensions of seed beds which are used for the preparation of this dry nursery. Then seeds are sown through broadcasting method. Means जो seeds हैं उनको sprinkle किया था इस bed के ऊपर on these raised seed beds, and the seedlings becomes ready for transplanting within 25 to 45 days. जो सीडलिंग्स हैं, जो सीड जर्मिनेशन के बाद जो सीडलिंग्स बाहर आती हैं सॉइल से, वो रेडी हो जाती हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए आफ्टर 25 to 45 days of sowing. This is the program which we can see here. These seed beds need to be watered daily through sprinkling. थोड़ा सा पानी इसमें छिड़काव करना पड़ता है to produce good quality seedlings, and after that they are ready for transplantation. The second type of nursery is the wet nursery. इसमें भी similarly जैसा हमने dry nursery preparation में पढ़ा था, the land with clay or loam soil is brought into fine tilth through repeated plowings followed by planking. And after that we add manures. Manure इसमें ऐड किया जाता है जैसा हमने dry nursery preparation में पढ़ा था. But in this wet nursery, water raised seed beds नर्सरी आर प्रिपेयर्ड. जो इसमें जो ये बेड्स बनते हैं सीड बेड, इसमें पानी भर जाता है. सो वाटर रेज्ड सीड बेड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर वेट नर्सरी प्रिपरेशन. 3 to 5 centimeter
Water is allowed to stand in these beds. Sprouted seeds are sown through broadcasting method. इसमें जो बेड्स हैं इनमें पानी लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर तक इसमें जो लेवल है इसका ऊपर रहना चाहिए पानी का इस बेड के ऊपर। और इसमें जो सीड्स हैं दे आर सोन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मीन्स स्प्रिंकल किए जाते हैं स्पॉटेड सीड्स इन दिस बेड्स। एंड वाटर इज़ ड्रेन्ड 1 day आफ्टर सोइंग, और जो वाटर है उसको ड्रेन कर दिया जाता है आफ्टर 1 day ऑफ सोइंग। द सीड बेड्स आर वाटर्ड व्हेन क्ले स्टार्ट्स क्रैकिंग। जो पानी है उसको फिर से इसमें डाला जाता है जब ये क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं सॉइल पे। एंड द सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 20 to 40 days आफ्टर सोइंग। सो 20 से 40 दिन के बाद जो ये सीडलिंग्स हैं दे आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटेशन। So this is how wet nursery is prepared and how we use these rice seedling for transplantation. Next comes the third method, which is Depong nursery. It is most followed method of nursery raising in Philippines. Now it is also practiced in India. The seedlings are raised on concrete floor or raised seed beds. या तो concrete floor पे या फिर raised जो seed beds हैं उस पे इन seedlings को बो किया जाता है। And 1 kilogram of seed is required per square meter of the nursery area. So 1 किलोग्राम जो seeds हैं वो चाहिए हमें अगर हमने ग्रो करना है seedlings को in a 1 square meter area of nursery. The seeds are spread on the polythene sheets and are covered with gunny bags. इसमें जो सीड्स हैं उन्हें पॉलीथीन शीट के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, जो रेज सीड बेड हैं इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है और ऊपर से कवर किया जाता है गनी बैग्स की हेल्प से। एंड देन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द सीड्स ट्वाइस अ डे। द गनी बैग्स अलॉन्ग विद सीडलिंग्स आर रोल्ड लाइक अ मैट देन टेकन टू द फील्ड्स वेयर सीडलिंग आर टू बी ट्रांसप्लांटेड। उसके बाद जो पानी इसमें डेली स्प्रिंकल किया जाता है, जब मैच्योर हो जाते हैं राइस सीडलिंग्स तो ये जो सीडलिंग्स हैं ये मैट की तरह इसको अप्रूव किया जाता है एंड देन इट इज़ टेकन टू द फील्ड जहाँ पे हमने इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना है। सो दिस इज़ द डेपोंग मेथड ऑफ नर्सरी प्रेपरेशन विच इज़ मोस्ट फॉलोड मेथड इन फिलीपींस एंड नाउ वी आर आल्सो प्रैक्टिसिंग दिस मेथड। और ये जो सीडलिंग्स हैं इनको हम फिर ट्रांसप्लांट करते हैं इन द प्रिपेयर्ड फील्ड्स। The next important step is transplantation in rice cultivation. In this process, जो सीडलिंग्स नर्सरी में मैच्योर हो गई हैं दे आर रेडी टू बी ट्रांसप्लांटेड, उन्हें नर्सरी से लेके हम प्रिपेयर राइस फील्ड्स में ट्रांसप्लांट करते हैं। और जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है वो मैनुअली किया जाता है। इन नाउ डेज वी हैव सम स्पेशल मशीन्स विद द हेल्प ऑफ दोज वी कैन ट्रांसप्लांट द प्लांट्स एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। So the seedlings are transplanted when they are 20 to 25 centimeter in their length and are 4 to 5 leaf stage. So इस stage पे जो seedlings हैं they are ready to be transplanted. और ये इमेज शो करती है मैनुअल ट्रांसप्लांटेशन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स और दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। सो मशीन्स की हेल्प से भी राइस सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं एट अ प्रॉपर डिस्टेंस बाय प्रॉपर स्पेसिंग। So the spacing between seedlings can be from 10 centimeter to 30 centimeters and it depends upon the variety and growth condition. और ये डिपेंड करता है राइस की वैरायटी पे और ग्रोथ कंडीशंस कैसी है उस पर। जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं ड्वार्फ प्लांट्स हैं दे आर ट्रांसप्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 into 10 centimeter. सो जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं उसके लिए हम ये जो स्पेसिंग है वो अप्लाई करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस सीडलिंग्स। Next important step in rice cultivation is manuring. That is the process of adding nutrients or organic fertilizers, biofertilizers in the rice field to obtain maximum yield. So for it we can use the farmyard manure, जो कि हमारा काउ डंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर सोइंग, वो ऐड किया जाता है फील्ड्स में। सिमिलर टू अदर क्रॉप्स, जो राइस क्रॉप है दैट रिक्वायर्स ऑल द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो राइस क्रॉप है उसको भी सभी मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, दैट इज़ चाहे वो बिफोर सोइंग हो जैसा इस प्रोग्राम में दे सकते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी प्लांट्स को चाहिए उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ओनली NPK, दैट इज़ नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम। दे नीड टू बी एडेड इन द फील्ड्स और इसका जो रेशो रहता है दैट इज़ 15 to 50 kg नाइट्रोजन, 15 to 30 kg फॉस्फेट एंड 15 to 30 kg पोटेशियम पर हेक्टेयर। दैट शुड बी अप्लाइड एज ए बेसल ड्रेसिंग। तो इसको इस रेशो में यूज़ करते हैं
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फील्ड प्रेपरेशन फॉर राइस कल्टिवेशन। और इसको हम बाद में जैसे राइस जब प्लांटेशन कर देते हैं उसके बाद भी हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स को ऐड कर सकते हैं टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एट द टाइम ऑफ पैडलिंग टॉप ड्रेसिंग विद एनपीके, जो टॉप ड्रेसिंग है एनपीके के साथ वो की जाती है 25 kg ऑफ ईच, 25 kg नाइट्रोजन और पोटाशियम और फॉस्फोरस, इस रेशो में स्प्रिंग राइस में हम इसको यूज़ करते हैं। Nowadays जो फार्मर्स हैं दे हैव स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें हम अब जो फर्टिलाइजर्स हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनका यूज़ कम कर रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वी यूज़ ग्रीन मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। सो जो ग्रीन मैन्योरिंग में हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली दैट इज़ ढेंचा, इसका जो बोटेनिकल नेम है सेसमेनिया एक्यूलेटे। इसकी ग्रीन मैन्योरिंग यूज़ किया था। दिस इज़ द प्लांट टेंचा एंड वी हैव मैनिला अगाथी। ये जो प्लांट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज अ ग्रीन मैन्योर बिफोर दैट इज़ 15 to 20 days बिफोर सोइंग। इसका ग्रीन मैन्योर यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देन इन इंडिया जो राइस फील्ड्स हैं दे आर एम्पल विद लाइट वाटर एंड हाई टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जिससे कि जो कुछ एक माइक्रोब्स हैं दे कैन बी ग्रोन इन द राइस फील्ड जिन्होंने कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ट्रांसप्लांटिंग द एग्रोनॉमिक पोटेंशियल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में ही हेल्प करते हैं इन राइस फील्ड्स। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है दैट इज़ ओलोसीरा फर्टिलिसिमा। इट इज़ द पावरफुल नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड्स। इसको हम राइस फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए सारा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है विदाउट फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर सकते हैं इन राइस फील्ड। Then we have two scientists, that is Venkataraman in 1979 and 1981 and Srinivasan 1979. They reported an increase in grain yield in paddy crop by 7 to 23% over the control. It means जिन राइस फील्ड्स में ये ब्लू ग्रीन एल्गी था उसमें 7 से लेके 23% तक जो यील्ड है वो इंक्रीज हुई एज कम्पेयर टू द राइस फील्ड विच इज़ दैट वाज विदाउट बीजीए। ऐसी राइस फील्ड जिसमें बीजीए नहीं था दैट इज़ कंसिडर्ड एज कंट्रोल। सो उस राइस फील्ड के कंपैरिजन में जिसमें बीजीए प्रेजेंट है उसमें 7 से 23% तक इंक्रीज हुआ यील्ड में। सो दे हैव रिपोर्टेड दिस एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट बीजीए सप्लीमेंटेशन, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ की गई हैं इंडिया में और थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे हैव प्रूव्ड दैट बीजीए सप्लीमेंटेशन कैन सेव 25 to 30 kg ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स विदाउट एनी रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड। अगर हम बीजीए की सप्लीमेंटेशन बीजीए को यूज़ करते हैं तो हम 25 से 30 किलोग्राम जो हमारा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जैसे एनपीके है उसको हम बचा सकते हैं और उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी यील्ड में। द यील्ड विल बी सेम। So this is very important step towards organic farming. By using BGA we can save lot of inorganic nitrogen fertilizers और हमारा जो crop yield है वो भी affect नहीं होगा, that gets enhanced by using BGAs. So this is all about the manuring in rice fields. Next important step is harvesting. Harvesting is the process of collecting mature crop from the field. जो crop mature हो चुकी है उसे field से collect करने के process को harvesting कहते हैं। और जो harvesting it is done when the plants turn yellow and the inflorescence becomes ripe. जब inflorescence mature हो जाती है तब हम इसे collect करते हैं। Manually जो harvesting है it is done with the help of instrument which is known as sickle और इसे दराटी भी कहा जाता है in most part of India. So, जो ये सिकल है इसके हेल्प से मैनुअली हम कलेक्ट करते हैं हार्वेस्ट करते हैं राइस को। बट इन डेवलप्ड कंट्रीज़ दे हैव मैकेनिकल कंबाइन हार्वेस्टर्स विच आर यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज़ टू हार्वेस्ट राइस। और जो हार्वेस्टिंग इट इज़ डन इन सितंबर टू अक्टूबर इन ऑटम राइस जिसे हम ऑज बियली और कर भी कहते हैं, एंड इन नवंबर टू दिसंबर इन विंटर राइस जिसे कहते हैं अमन हैं और कार्तिका, एंड March to April in spring rice. So this is the rice harvesting time. ये वेरी करता है एरिया टू एरिया और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से, और इसे कहा जाता है बोरो और दलुआ भी।
और जो ग्रोइंग पीरियड है दैट इज़ वेरिएबल, ये सबके लिए इक्वल नहीं है। इट इज़ 90 to 110 डेज़ इन ऑटम राइस। जो ऑटम राइस है उसमें ये 90 to 110 डेज़ है, और इट इज़ 140 to 60 डेज़ इन विंटर राइस। विंटर राइस में जो ड्यूरेशन है क्रॉप की दैट इज़ 140 to 160 डेज़। और जो हार्वेस्टेड क्रॉप है दैट इज़ थ्रेश्ड विद मैकेनाइज्ड थ्रेशर्स और बाय हैंड पाउंडिंग्स, जो कि सिर्फ इंडिया में होता है हैंड पाउंडिंग्स की हेल्प से। अदरवाइज वी यूज मैकेनाइज्ड थ्रेशर्स for getting the rice threshed or to obtain the grains। और जो grains obtain किए जाते हैं उसके बाद उन्हें उनका जो हस्क है और हल है grain से वो रिमूव किया जाता है मैनुअली थ्रू पाउंडिंग और इन द मिल्स में, या फिर पाउंडिंग की से मैनुअली हम जो ग्रेन्स हैं उनसे हस्क को या हल को रिमूव करते हैं। और जो ग्रेन्स हमें मिलते हैं after milling they are brown in color and contain carbohydrates, proteins, minerals and vitamins। जबकि जो पॉलिश्ड राइस होता है उसमें ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। जो आफ्टर मिलिंग जो राइस मिलता है दैट इज़ ब्राउन इन कलर, और ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। वाइल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग और फिर मिलिंग में इसमें जो आउटर लेयर है ब्राउनिश लेयर उसको रिमूव किया जाता है, और जो इसका प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ ब्रान, उसे ब्रान कहा जाता है। और जो ब्रान इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग द पॉलिशिंग प्रोसेस, जो ब्रान है वो पॉलिशिंग प्रोसेस में निकल जाता है, और जो राइस है उसमें वाइटामिन्स कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ राइस। नेक्स्ट कम्स प्रोडक्शन स्टेटस। China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Thailand, Philippines and Brazil are major rice producing countries in the world। If we talk about the latest figures, जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो मैक्सिमम राइस की प्रोडक्शन करता है दैट इज़ 97%। और ये जो डाटा है इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्लोबल शेयर ऑफ राइस प्रोडक्शन दैट इज़ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, STAT 2020। Then second number is of America, then third is Africa, fourth is Europe, then comes Oceania। So ये continents हैं मेजर जिनका contribution है राइस प्रोडक्शन में। So सबसे ज़्यादा जो contribution that is of Asia। India is the second largest producer of rice in the world। India दूसरे नंबर पे है दुनिया में, that is 158 million tons after China। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना एंड हरियाणा आर द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। सो ये जो राज्य हैं इंडिया के, ये टॉप प्रोड्यूसर्स में आते हैं राइस प्रोडक्शन में इंडिया में। राइस हैज़ अ प्रोडक्टिविटी ऑफ 6,710 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन होती है दैट इज 6,710 kg per hectare in China, followed by Vietnam, that is 5,573 kg per hectare, then Indonesia 5,152 kilogram per hectare, and Bangladesh that is 4,375 kg per hectare। So ये production status है per hectare में in different countries। Next, productivity is about 2,390 kg per hectare in India। इंडिया की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इंडिया में प्रोडक्शन इतनी है पर हेक्टेयर, और ये जो डाटा लिया गया है इट इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2015 विच इज़ क्वाइट लो देन मैनी अदर कंट्रीज। सो इंडिया में बहुत कम है ये प्रोडक्शन पर हेक्टेयर अगर हम देखें और कंट्री से कंपेयर करें। नेक्स्ट वी हैव दिस टेबल, इट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ दिनेश विच शोज द प्रोडक्शन वाइज स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ इट इज़ टेकन फ्रॉम द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है सोर्स 2016 से लिया गया है ये। सो टॉप करती है इसमें चाइना दैट इज़ 209.5 मिलियन टन्स, और सेकेंड नंबर पे है इंडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया दैन इट इज़ टॉप्ड बाय वेस्ट। नेक्स्ट कम्स हाई यील्डिंग वैराइटीज़। So this is the table tabulated form। First this table shows state, cultural conditions and varieties। So in Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Eastern UP, West Bengal, the conditions are rain-fed upland। और यहाँ पे जो varieties यूज़ किया था that is जल्दी धान 13, PNR 546, पूसा 44, धनलक्ष्मी पंथन 16, स्वर्णा। सो ये कुछ varieties हैं जो इन एरिया में इन स्टेट्स में यूज़ किया था। Then next we have states like Haryana, Punjab, Western UP
इसमें जो कंडीशंस हैं कल्चरल कंडीशन देर आर इरीगेटेड रेन फेड कंडीशंस. इसमें जो वैराइटीज़ यूज़ किया जाती है दैट इज़ पूसा बासमती 1509, पूसा 1612, पूसा बासमती 6, दैन इम्प्रूव पूसा बासमती 1. सो ये जो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं ये हाई यील्डिंग वैराइटीज़ यूज़ की जाती हैं इन स्टेट्स में. दैन नेक्स्ट वी हैव हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड. यहाँ पे इरीगेटेड रेन फेड कंडीशंस होती हैं. कल्चर कंडीशंस की बात करें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं T23, IR579, कस्तूरी, RP732, हिमधान, हिमालय 2216, प्लम धान 957, शुक्रा धान, भृगु धान, वरुण धान. सो ये कुछ एक हाई यील्डिंग वैराइटीज़ है जो हिमाचल और उत्तराखंड में ग्रो की जाती है. Next, there are some common diseases which affects the rice crop. So, firstly, we have bacterial diseases. जो बैक्टीरियल लेट ब्लाइट है राइस का वो कॉज करता है बैक्टीरिया दैट इज Xanthomonas oryzae. And then next is leaf streak disease of rice which is caused by Xanthomonas oryzae. Next category is of fungal disease. So first one is the blast disease of rice which is caused by Pyricularia gracia. Then false smut of rice, it is caused by Astileginoidea virens. Then bronze spot disease, it is caused by Helminthosporium oryzae. Then sheath rot, it is caused by Serocladium oryzae. Sheath blight again is caused. Sheath blight is caused by Rhizoctonia solani. Then grain discoloration, it is caused by fungal complex. So these are some fungal disease. Next comes viral disease. इसमें एक ही disease है that is rice tumor disease that is mentioned here. It is caused by rice tumor viruses that is RTSV, RTBV. So these are some diseases caused by bacteria, fungi, and viruses. Next comes the research institutes which are related to rice. Firstly, we have International Rice Research Institute, abbreviated as IRRI. It has its headquarters at Los Banos, Laguna in Philippines. Here present है Philippines में. Next, we have Central Rice Research Institute, abbreviated as CRRI. It is located in Cuttack, Odisha. Comes under ICAR, that is Indian Council for Agriculture Research. Next comes utilization of rice. Rice is an important crop that feeds more than 50% of world's population. It can be used in various ways. Some are listed below. Firstly, it is used as a staple food. It feeds millions of people in India, China, and other Asian and African countries. It is a good source of carbohydrates, protein, mineral, and vitamins. So it forms a staple food diet or food item. Next, this rice bowl. So it is consumed with legumes, which are source of proteins. Next comes non-fermented ethnic foods. A number of ethnic foods such as kheer, which is a delicious sweet dish which is made made by using rice. Then next is firni. It is again a sweet dish, and pulao. So these are some common non-fermented ethnic foods which are prepared by using rice grains. Next come fermented ethnic foods. Rice is used to prepare a number of ethnic food items which are mostly prepared in South India. It include idli, dosa, and utpam. This is dosa and this is utpam. So ये जो dishes हैं ये rice के flour को use करके बनाई जाती है. Next comes rice bran. जो rice bran है, it is hard outer layers of grains consisting of combined aileron and pericarp. It is rich in vitamins, minerals, and proteins. It has been reported to be useful in controlling diabetes, high blood pressure, high cholesterol, alcoholism, and obesity. So इन चीज़ों को ये control करने में help करता है. This is bran, rice bran. Then next comes rice bran oil. It contains oil is obtained from the outer brown layer of rice inside the husk, and it contains 38% non-saturated fatty acids and 37% polysaturated fatty acids and 25% saturated fatty acids. So ये इसके components हैं जो present होते हैं rice bran oil में. Next comes alcoholic drinks. Some fermented alcoholic drinks can be prepared by using rice. One of the famous is lugri. Lugri or chakti भी इसे कहते हैं in Himachal Pradesh, and is famous for its unique flavor and aroma. So this is the white alcoholic drink which is prepared by using rice, और इसे कहा जाता है lugri or chakti in Himachal Pradesh. Next comes rice milk. It is prepared from the rice grains.
और ये बनता है बाय नेचुरल एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एड स्वीटनेस टू राइस मिल्क। और ये एक अच्छा सोर्स है to those person who are lactose intolerant and are also allergic to soy milk. So जो persons lactose intolerant है और allergy होती है soya milk से, for those it is a good source of nutrients or we can say carbohydrate. So this is the rice milk which is used, which is prepared by using rice grains. Next comes rice flour. Rice flour is used in confectionaries, ice creams and puddings. It is also used to make rotis. This is rice flour. Next comes rice starch. Rice starch is prepared from rice grains. It can be used in laundry and textile industry. Glucose can be prepared from the starch of the rice grain. So this is the rice starch powder. It is used as a thickening agent for cumes, stew, or gluten-free baking. Other edible products which are made by using rice grains are used for preparing puffed, parched, and beaten rice. Next, packing and insulation. जो paddy husk है, it is used for making packings and insulating material. Then straw boards and paper. Paddy husk can be used for making straw boards and paper. So ये जो straw boards और paper हैं, ये बनता है rice के husk से. Then feed rice hull or husk. Although not a good source of nutrients, it is used to make feed for horses. तो ये जो feed बनती है horses के लिए, उसमें ये यूज़ किया था. दैन बेडिंग, राइस हल और हस्क इज़ ऑल्सो यूज्ड एज बेडिंग इन पोल्ट्री. जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें बेडिंग के लिए इसको यूज़ किया था. दैन नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट्स. ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइस ब्रान कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, एंटी corrosive and anti rust material. Next comes soaps and cosmetics. Oil extracted from rice bran is used for making soaps and cosmetic items. जो सोप है वो भी बनाया जाता है इससे, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया था राइस ब्रान से. नेक्स्ट मल्चिंग मटेरियल. पैडी स्ट्रॉ सर्व्स एज अ गुड मल्चिंग मटेरियल. जो पैडी स्ट्रॉ हैं उसे एज अ मल्चिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है इन वेरियस वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स. Next comes some important MCQs which are related to rice. Firstly, we have International Rice Research Institute. It is located at Philippines, Mexico, Switzerland, India. So you have to answer these questions in the comment box. Next comes Central Rice Research Institute. It is located in which place in India? Our options are New Delhi, Karnal, Lucknow, or Cuttack. So these are very simple questions. I have already give their answers in the previous slides, so you can give its answer in the comment section. Next comes how much water is required to produce 1 kg of rice grain. So its right answer is 5000 liter. So rice grain की जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी यूज़ होता है. That's why it is also known as aquatic or semi-aquatic crop. The main protein in rice is gluten, lysine, origin, none of the above. So its right answer is origin. So this is the protein which is present in the rice. और जो rice grain है उसमें जो protein content होता है that is 6 to 7%, और maximum it contains carbohydrate, that is up to 70% of carbohydrates. Next question is genus Oryza have 24 species, out of which cultivated species are. Our options are Oryza glabrima, Oryza sativa, none of these, both A and B. So its right answer is both A and B. जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है राइस की, वन इज़ राइजा सटाइवा. इसकी जो वैराइटीज़ ग्रो की जाती हैं, वन इज़ इंडिका, इट इज़ ग्रोन इन इंडिया. नेक्स्ट इज़ जेपोनिका, ग्रोन इन जापान. जेवनिका, इट इज़ ग्रोन इन इंडोनेशिया. द नेक्स्ट स्पीशीज़ ओराइजा ग्लैब्रिमा, और ये मोस्टली ग्रो की जाती है वेस्ट अफ्रीका में. नेक्स्ट ग्रेन ऑफ राइस. कैरियोप्सिस इज टाइटली enclosed by lemma and palea, collectively known as. जो लेमा और पेलिया है ये जो ग्रेन है राइस के उसको एनक्लोज करता है टाइटली. उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कल्म, हेलम, हल और पल्मिनस. इस राइट आंसर इज हल और हस्क. नेक्स्ट कम्स राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज. राइस की इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं ईयर, पेनिकल, हेड और स्पेरिक्स. इस राइट आंसर इज पेनिकल. नेक्स्ट, इन राइस फील्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर शुड बी provided at. Our options are oxidized zone, reduced zone, top dressing, or both A and B. Its right answer is reduced zone. जो वाटर के ऊपर वाला सरफेस होता है राइस फील्ड में, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, और जो वाटर के नीचे प्रेजेंट होता है दैट इज रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट. सो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिड्यूस्ड जोन में प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस इज
Our options are April to May, June to July, October to November, Jan to Feb. So its right answer is Jan to Feb. Sowing seasons of rice. First is Boro summer spring rice, और इसका जो टाइमिंग है दैट इज जैन टू फैब, और हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल टू मई. नेक्स्ट वी हैव ऑज ऑटम और प्री खरीफ राइस. इसमें जो सोइंग टाइम होता है दैट इज अप्रैल टू मई. हार्वेस्टिंग की जाती है अगस्त से सितंबर तक. एंड नेक्स्ट सीजन फॉर राइस इज अमन और खरीफ राइस, और इसका जो सोइंग टाइम होता है दैट इज फ्रॉम जून टू जुलाई, और हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू पॉलिश्ड राइस डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन बीइंग इज. कौन सी डिजीज़ है जो पॉलिश्ड राइस को कंज्यूम करने से होती है ह्यूमन बीइंग्स में. आर ऑप्शंस आर पेलाग्रा, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस और रिकेट्स. इस राइट आंसर इज बेरी, क्योंकि जो आउटर ब्राउनिश लेयर होती है राइस ग्रेन की, जब वो रिमूव की जाती है दैट बिकम्स डेफिशिएंट इन वाइटामिन्स मिनरल्स, और इसमें जो विटामिन B1 है दैट बिकम्स डेफिशिएंट एंड लीड्स टू डिजीज बेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट आई डिजीज इन राइस इज ड्यू टू. आर ऑप्शंस आर आयरन टॉक्सिसिटी, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी और कॉपर डेफिशिएंसी. सो इस राइट आंसर इज आयरन डेफिशिएंसी. Then there are some other diseases which occur in rice. First one is the Khera disease of rice. It is very common disease and well-known disease of rice caused due to deficiency of zinc. Zinc deficiency. The next is browning of rice. It is caused by iron toxicity. Next is reclamation disease of rice. It is caused due to copper deficiency. Next comes Akiochi disease of rice. It is due to the presence of hydrogen sulfide. That is hydrogen sulfide toxicity. So these are some diseases which are related to rice. This was all about for our today's discussion. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.